Firstly, we'll discuss oxidation number of iron in Fe3O4. Fe3O4, you know, it is a, you can say, magnetic oxide of iron, which is otherwise, अगर आप formula basis में iron का oxidation number निकालते हो, it comes out to be like this. So by using this simple formula to calculate oxidation number, it comes out to be 8/3 in positive. But actually, fractional oxidation number is not possible. So what we can do, we need to discuss its structure, how it is possible that it is 8/3. Actually, iron oxide, this Fe3O4, ferroferric oxide is a mixture of ferrous oxide and ferric oxide. Ferrous oxide and ferric oxide का ये mixture है. तो अब you can see that in ferric oxide, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो. Fe3O4 is a mixture of FeO and Fe2O3. And in FeO, you know, oxidation state of ferrous. तो FeO में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2 एंड इन Fe2O3 if you find out oxidation number of iron it will be 2x plus 3 minus 2 is equal to 0. 2x is equal to plus 6 and x is equal to plus 3. So here you can see that in Fe3O4, one iron atom which is in the form of ferrous oxide is in the oxidation number +2 and in ferric oxide, ये आपको वैसे भी पता है, iron shows variable valencies, 2 different valencies are shown by iron, एक है +2 और एक है +3. तो एक iron atom यहाँ पे +2 state में है ferrous oxide में and 2 iron atoms in ferric oxide are in +3 state. तो अब आपने ये फ्रैक्शन प्रूव करना है कि कैसे आया. तो व्हाट वी नीड टू डू, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 व्हाट इट विल बी. एवरेज निकालना, अपने तीनों एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड कर दो, 2 + 3 + 3 divided by total number of atom present in that species. Fe3O4 में total iron atoms 3 है, तो divided by 3 it will be +8/3. So this is how atomic oxidation number comes out to be fractional. Is it clear? You need to note down these examples जो आपकी बुक में फ्रैक्शनल के लिए दिए हुए हैं, उसी में से कोई आपको आएगा बेटा, एक्स्ट्रा आपको और बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. The examples which are given in your book, you need to discuss that. So let us discuss next one more example. Pb3O4. Pb3O4 अगर हम कन्वेंशनल मेथड से निकालें, using conventional method, that is the formula method, then it will be 3x plus 4 minus 2 is equal to 0. 3x will be equal to +8. X is equal to again +8/3. ठीक है? Again it comes out to be 8/3. But actually, structurally, we know that Pb3O4 is a mixture of 2 different oxides of lead. Lead कौन सी दो common group valencies show करता है? Lead is a member of 14th group. 14th group में element दो most common oxidation state जो show करते हैं +2 and +4. तो lead के जो oxide है PbO and PbO2, ये +4 oxidation state में oxide है lead dioxide and this is lead monoxide. तो यहाँ पर आपको 2 moles PbO के प्रेजेंट है इस कंपाउंड में एंड 1 मोल ऑफ PbO2. तो टोटल आप देख लो Pb2 1 1 3 एटम्स लेड के हो गए, 2 1 2 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए. तो इन दिस वे दिस
Pb3O4 is a mixture of 2 moles of PbO, lead monoxide, and 1 mole of PbO2, that is lead dioxide. Now we can find the oxidation number. You know, मैं यहाँ calculate नहीं कर रही हूँ, आप कोई X method से निकाल सकते हो. Otherwise, आपको simply पता है lead commonly shows 2 different valencies, +2 and +4. तो यहाँ पर जो valency है वो +2 है. Here it is in +4. ठीक है? तो two lead atoms in PbO are in +2 state. 1 lead atom in PbO2 is in +4 state. So average oxidation number will be of lead will be 2 + 2 + 4. वैसे साइन के साथ लिखना है, बट प्लस में है इसलिए मैं साइन वाला नहीं लगा रही हूँ. It is divided by 3, so it will be +8/3. ठीक है, जो साइन है ऑक्सीडेशन नंबर का, विद साइन यू नीड टू राइट all are these in positive oxidation state. तो आंसर इन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर comes out to be fractional. जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर होता है पर एटम हम देखें तो कहीं पे भी फ्रैक्शनल नहीं होता, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली द नंबर which the electrons are lost or gained by a particular element in a molecule. ठीक है, तो it can never be fractional. Next, one more example. Carbon suboxide C3O2. This is an oxide of carbon which is named as carbon suboxide. If you find its oxidation number with the help of formula, conventional method अगर हम अप्लाई करते हैं, using conventional method it will be 3x plus 2 minus 2 for oxygen equals to 0. 0 इसलिए because the entire molecule is neutral. So here 3x will be plus 4 और x is equal to plus 4/3. Means यहाँ पर जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, दिस इज 4/3. अब अगेन 4/3, अदरवाइज हर एक कार्बन एटम यहाँ पे 4/3 में प्रेजेंट नहीं है. तो दिस इज टू बी प्रूवन बाय यूजिंग द स्ट्रक्चरल मेथड. तो हियर यू विल राइट स्ट्रक्चरल मेथड के अंदर आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सबऑक्साइड दैट इज C3O2. तो दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट इन दिस स्ट्रक्चर. अब आप एक चीज याद रखो बेटा, स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो अपने सेम टाइप के एलिमेंट से, मतलब दो ऐसे एटम्स जब अटैच्ड हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो इन दैट केस this element will not acquire, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. मींस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्टेड नहीं है. दिस इज सिमेट्रिकल इन बिटवीन दीज टू एटम्स. तो यहाँ पर भी सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी सिमेट्रिकल है. तो दिस कार्बन विल एक्वायर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. जीरो इसलिए क्योंकि इसके दोनों तरफ कार्बन ही प्रेजेंट है. तो व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर, नो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट विल बी देयर. तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ही नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी नहीं होगा. तो दिस कार्बन इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. अब ये कार्बन इस तरफ तो कार्बन से ही बॉन्डेड है, तो इस बॉन्ड में तो कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग नहीं है. बट फॉर दिस CO बॉन्ड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड मोरओवर C इज बॉन्डेड विद ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स. तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इस तरफ आएगा, and this oxygen will acquire -2 negative charge. Similarly, this oxygen will also acquire -2 negative charge. तो अब इन पे माइनस है, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे 0 है, तो ऑब्वियसली ये कार्बन +2 हो गया, ये कार्बन भी +2 स्टेट में हो गया. तो बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल मेथड जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उतने ही नंबर में आप चार्ज उस एटम पे लगाओगे,
और चार्ज का साइन डिसाइड करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है that atom will acquire negative charge. The atom with you can say lesser electronegativity will acquire पॉजिटिव चार्ज। और वो चार्ज कितना लगाना है डिपेंड करेगा कितने बॉन्ड्स शो हुए हैं, ठीक है। और ऐसे एटम्स पे चार्ज नहीं आएगा जो अपने दोनों तरफ एक सेम टाइप ऑफ एटम से, मतलब दो एटम सेम टाइप के जब अटैच होते हैं, हमने पढ़ा है एलिमेंट O2 N2 इन सब में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। तो यहाँ पर आपके पास तीनों कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, इसकी 0, इसकी +2, इसकी +2। नाउ इफ वी फाइंड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2, it will be +2 +0 +2, ठीक है। with sign here you can write like this, तो +4 divided by 3। जितने एटम्स है उससे आपको नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करना है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आई हैं हर एक एटम की उनको ऐड कर दो विद साइन। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द सेम आंसर एज यू हैव कैलकुलेटेड कन्वेंशनली, ठीक है। तो इस तरह से एक दो एग्जांपल्स और भी हैं आपकी बुक में। एक एग्जांपल है Br3OA, दिस इज कॉल्ड ट्राई ब्रोमो ऑक्टा। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम डिवाइड बाय 3 इसलिए किया क्योंकि 3 कार्बन्स थे। हाँ जी, हाँ जी, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एवरेज निकालनी है पर एटम। एवरेज का मतलब क्या होता है कि पर एटम ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया। तो वो हम जो फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं ना, ये 3x, ये 3 एटम्स का टोटल है। जब हम x निकालते हैं तो वो पर एटम आता है ना, तो पर एटम एवरेज ही आता है, इसीलिए आंसर फ्रैक्शनल में आता है, ठीक है। जब आप स्ट्रक्चरली मेथड देखोगे तो अब आपको ये कंसेप्ट माइंड में रखना, फ्रैक्शनल आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम, बट एक्चुअल में कोई भी एटम अपनी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ही ट्रांसफर होगा ना। जब भी होगा आधा इलेक्ट्रॉन या 1/4 या 4/3, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। तो वो प्रूव करने के लिए कि ये फ्रैक्शनल क्यों आया, वी नीड टू गो इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेटा बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे जिनमें फ्रैक्शनल नंबर आते हैं, बट आपको जितने बुक में हैं उससे बियॉन्ड हम एग्जाम में नहीं डालते, क्योंकि हर एक का स्ट्रक्चर फिर आपके लिए ऑन द स्पॉट पॉसिबल नहीं होगा कि आपको बताओ। तो जो एग्जांपल्स बुक में हैं यू गो फॉर दैट ओनली, उतनी स्ट्रक्चर्स आपको करनी है। वन मोर एग्जांपल, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड Br3OA, ट्राइब्रोमो ऑक्टा octoxide. So in this 3 bromine atom and 8 oxygen atoms are bonded with each other. Conventional methods again 3x plus 8 minus 2 is equal to 0. 3x is equal to plus 16. X is equal to plus 16 by 2. So again it is a fractional number. Okay, if we do it by you can say structural method, then we can prove it like this. जो स्ट्रक्चर है Br3O4 का, दिस इज Br3O8। Because bromine has 7 electrons in its valence shell, तो 7 मैक्सिमम बॉन्ड ब्रोमीन बना सकता है। और यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 and 1 7, ये वाला एटम 7 अपने इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, एंड दिस ब्रोमीन एटम इज बॉन्डेड विद 2 oxygen atoms. Here this is in you can say 4 और 2 6 कोवेलेंट बॉन्ड ये बना रहा है, बिकॉज ये हेलोजेंस है बेटा। +7 इनका हाईएस्ट जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, बिकॉज दे हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है कि जिस ग्रुप का एलिमेंट है उस ग्रुप की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट P ब्लॉक के अंदर उतनी ही होती है जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली वाले एलिमेंट्स हाईएस्ट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, सल्फर वगैरह। नाइट्रोजन फैमिली +5 तक शो करती है। हेलोजन फैमिली कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7। तो अब यहाँ पे देखो ब्रोमीन ये तीनों जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट विल सी। यहाँ ब्रोमीन ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड है। ब्रोमीन के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दिस ऑक्सीजन विल एक्वायर 2 नेगेटिव चार्ज,
This oxygen will acquire -2 charge again. This will also acquire 2 negative charge. ये ऑक्सीजन भी 2 नेगेटिव, ये भी 2 नेगेटिव, मतलब 2 बॉन्ड्स बना रहे हैं सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ऑल दीज ऑक्सीजन विल एक्वायर 2 नेगेटिव चार्ज. अब ये ब्रोमीन जो बॉन्डेड है 1 2 3 ऑक्सीजन एटम विद 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स ईच, और ये सब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग इस तरफ है, तो इन तीनों ऑक्सीजन एटम्स की वजह से ब्रोमीन पे +2 +2 +2 +6 चार्ज है. ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है Br के बीच में, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट यहाँ पे आपने नहीं शो करनी. तो दिस ब्रोमीन इज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6. ये क्लियर हो गया आपको? 3 ऑक्सीजन एटम, तीनों डबल बॉन्डेड, -2 -2 -2 ऑक्सीजन, और Br पे आ गया +6. ठीक है, इस बॉन्ड का कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं है. अगेन ये ब्रोमीन, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, टोटल 4 माइनस नेगेटिव चार्ज हो गया. इस ब्रोमीन पे आ गया +4 चार्ज, बिकॉज दिस ब्रोमीन इज बॉन्डेड विद 2 ब्रोमीन एटम्स ऑन बोथ साइड्स. तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट सिर्फ इधर है. तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इस सेंट्रल ब्रोमीन का हुआ, और इसका अगेन ये 3 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड है, इट विल हैव +6 चार्ज. तो हियर यू कैन सी ये ब्रोमीन +6 स्टेट में है, ये +4 में, और ये +6 स्टेट. इस स्ट्रक्चरल मेथड से आप इजीली बॉन्ड्स देख के निकाल सकते हो, एक्स पुट करके, और फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये हमने निकाला था 16/3 आता है पर ब्रोमीन एटम. अब आप इसका एवरेज निकाल लो. दिस विल बी +6 +4 +6 over 3. 6 6 12 and 4 16/. तो अगेन जो हमारा आंसर कन्वेंशनल मेथड से आया था वो आंसर ठीक था, बट आपको शो करना पड़ता है. ऐसे क्वेश्चन जब हम एग्जाम में देते हैं ना, तो आपको पूरा स्ट्रक्चरली शो करना है व्हाई इट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल. अदरवाइज फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर फॉर अ पर्टिकुलर एटम इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, वन मोर एग्जांपल. This is tetrathionate ion S4O6. Tetrathionate ion S4O6 2 नेगेटिव. अब अगेन अगर आप इसको हम फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं, 4x S का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप फॉर्मूला मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं, 4x + 6 ऑक्सीजन -2 में इक्वल्स टू, यहाँ पर 0 की जगह आपने -2 यूज करना है, बिकॉज इट इज एन आयनिक स्पीशीज. आयन के लिए जितना चार्ज है विद साइन आपको नोट करना है. 4x = +12 -2, और x = +10/4. तो ये 10/4 जो आया यहाँ पे फॉर्मूला में, दिस विल प्रूव बाय दिस स्ट्रक्चरल मेथड. Structurally we can show tetrathiocyanic ion This is how tetrathionate ion structure can be drawn. ये जो centrally located 2 सल्फर एटम्स है, ये सिंगल बॉन्ड से हैं SS, मतलब अपनी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके साथ 2 बॉन्ड, इसके साथ 2 बॉन्ड. बाहर वाले जो सल्फर है, they are forming 6 bonds because sulfur can maximum form 6 covalent bonds. सल्फर अपनी 6 ऑक्सीडेशन नंबर से ज्यादा स्टेट शो नहीं कर सकता. टोटल स्पीशीज पे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ से आया? ये जो टर्मिनल 2 ऑक्सीजन है, ये एक बॉन्ड के साथ ही बॉन्डेड है, तो इनके पास एक लोन पेयर, मतलब इनका ऑक्टेट अभी लोन पेयर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज की एक बॉन्ड और बना सकते हैं. तो दिस इज हाउ दिस 2 नेगेटिव चार्ज अपीयर्स, एंड ये 2 ऑक्सीजन जो है पर सल्फर एटम डबल बॉन्डेड है. नाउ ये दोनों सल्फर जो अपने दोनों तरफ सल्फर से बॉन्डेड है, इनके ऊपर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर. दिस सल्फर इज इन, ये 2 सल्फर एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए, और ये जो सल्फर है जिनके अराउंड 3 ऑक्सीजन एटम्स है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है -2, ये भी डबल बॉन्डेड है -2, इस पे ऑलरेडी
जितना चार्ज है अगर तो वो चार्ज के इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर होता है. दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -2. तो ये सबको अगर ओवरऑल देखना है आपने कि सल्फर पे कितना चार्ज होगा इन एटम्स की वजह से, तो -2 -2 -1 टोटल हो गया प्लस एक ये भी माइनस है क्योंकि ये जीरो नहीं है ना ओवरऑल, तो यहाँ पर हो गया +6, यहाँ हो गया +6. अब ये 6 कैसे आया, आपने ये नेगेटिव चार्ज भी इंक्लूड करना है. एक तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से माइनस चार्ज आया, एक माइनस ऑलरेडी ऑक्सीजन पे था, तो आप इसको -2 भी सीधा लिख सकते हो. ये -2 कैसे आ रहा है कि एक तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग हुई सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ, एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी उस इलेक्ट्रॉन पे था, तो टोटल -2 6 कर दो. अगर आपने यहाँ -1 लिखना है तो इस नेगेटिव को अलग से कंसीडर कर लेना, क्योंकि जब हम एक्स मेथड से निकालेंगे तो इस इतने पार्ट का अगर आप निकालोगे SO3 एक नेगेटिव चार्ज के साथ, तो आपको x यहाँ पर वैल्यू सल्फर के लिए +6 ही आएगी. तो आप स्ट्रक्चरली मेथड से सीधा देख के भी फाइंड कर सकते हो. तो दिस इज हाउ टोटल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स का आया आपका, दैट इज +6 0 0 फिर +6, ये 6 0 0 6 डिवाइडेड बाय 4. दिस कम्स आउट टू बी 12/4. एक सेकंड कुछ गड़बड़ 5 भी आएगा, सॉरी. नेगेटिव चार्ज टोटल स्पीशीज पर है, हम अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो इट विल बी +5 ही आएगा. सॉरी, ये +5 स्टेट में है बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन का कोई शिफ्टिंग हमने नहीं कंसीडर करी. दिस विल बी 10/4. It comes out to be like this. This is how we can find why particular atoms have, you can say, यहाँ otherwise सल्फर 6 में होता अगर कोई और स्पीशीज होती, यहाँ पर सल्फर ही था, तो ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है 0 हो गया, और ये 2 2 और इसको 1 ही कंसीडर करना है, क्योंकि आगे अगर हम ये टेट्राथायोनिक एसिड अगर होता तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ होता, तो वो भी यहाँ नहीं है, उसकी वजह से वो चार्ज आपने कंसीडर नहीं करना. अब एक और एग्जांपल है कॉमन सा, दैट इज दो में से एक साथ ही कंसीडर कर लो, H2SO4 एंड H2SO5. सॉरी, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉर्मल H2SO4 एंड दिस इज पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5. देखने में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ऑक्सीजन का ही फर्क है, बट जब आप नेम देखोगे इन एसिड्स के तो दिस इज नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड. पर ऑक्सो का मतलब होता है कि इसमें एक पेरोक्साइड लिंक के जा रहा है. वो कैसे आ रहा है वो हम स्ट्रक्चरली पहले देखेंगे. पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से इसका सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें और इसमें कितना है, तो यहाँ पर दिस इज +2 हो गया, ये x सपोज ये -8, टोटल 0, तो x will be +6. यहाँ पर x की वैल्यू +6 आ रही है, एंड हियर इट इज +2 +x +-10 = 0, x = 8. ठीक है. अब बच्चे क्या करते हैं, जब हम एग्जाम में ये स्पीशीज देते हैं, आप लोग कैलकुलेट इसी मेथड से कर देते हो और +8 आंसर लिख देते हो, बट दिस आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आप जब तक स्ट्रक्चरली मेथड अप्लाई ना करो तब तक इसमें आपको करेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मिलेगा. और ये आपने कैसे चेक करना है कि ये रॉन्ग क्यों हुआ. सल्फर कैन नॉट फॉर्म और कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +8. +8 ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ नोबल गैसेस या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें कुछ एक एलिमेंट्स है जो शो करते हैं. अदरवाइज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में सिर्फ एक ज़ेनॉन के कंपाउंड्स हैं जहां वो शो कर सकता है. अदरवाइज नोबल गैसेस भी आपको पता है ज्यादा कंपाउंड्स नोन नहीं है. तो आपको +8 ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी करेक्ट नहीं करना अगर फॉर्मूला मेथड से आ रहा है. अब आप इसका तो +6 करेक्ट है, फिर भी मैं स्ट्रक्चरली आपको बता दूं कि दोनों किस तरह से होती है. सल्फर बेटा, ये जो आपको पहले भी एक बार मैंने बताया, ऑक्सो एसिड जो होते हैं उनमें जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली मिनरल एटम के साथ अटैच नहीं होता, रादर इट इज अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ OH. This is the structure of sulfuric acid. कि दो ऑक्सीजन तो डबल बॉन्डेड है, सल्फर के 6 बॉन्ड्स आपने बनाने हैं मैक्सिमम. सल्फर 2 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन एटम, 2 सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगे. तो दिस इज हाउ सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल
स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर जो है सल्फ्यूरिक एसिड की वो ये है। अब इसमें देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, इसके लिए -2, इसमें -2। ये ऑक्सीजन वैसे तो -2 में ही है, बट इधर +1 ये हाइड्रोजन की वजह से। और तो अगर आप इस सारे मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करोगे तो ये +1 ये +1 कंसीडर करते हुए सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो 6 आती है। ठीक है, आप अगर इसमें कंफ्यूज होते हो तो आप इस बॉन्ड के लिए इस ऑक्सीजन को -1 ही रख लो, इसको मत लिखो हाइड्रोजन, क्योंकि आपने सेंट्रल एटम जिसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। तो ये हो गया +1, यहाँ से +1, यहाँ से +2, यहाँ से +2, 2 2 4 and 2 6। तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर स्ट्रक्चरली भी +6 स्टेट में है, फॉर्मूला से भी +6 आता है। बट पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO5, इसके अंदर स्ट्रक्चरली हम देखेंगे कि +8 आता है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज +8 में सल्फर कभी पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। यहाँ तक वाला पार्ट सारा सेम है, क्योंकि ये भी एक तरह का ऑक्सो एसिड है, तो हाइड्रोजन जितने भी होंगे ऑक्सीजन के साथ ही अटैच होंगे। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो वो क्या है, नाम से आपको पता लगेगा दिस इज पर ऑक्सो। तो यहाँ एक आपने पर ऑक्साइड लिंकेज बनाना, दिस इज पर ऑक्साइड लिंकेज। तो ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है H2SO5 आ गया। बस ये एक ऑक्सीजन इसमें जो था वो दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन विद हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जो परऑक्साइड लिंकेज की फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ये जो सल्फर है दिस इज -2, ये -2, ये -1, ये -1, इतना ही मैं लिख रही हूँ क्योंकि बाकियों की हमें जरूरत नहीं है। वैसे ये +1 में है, यहाँ पे ये भी +1 में होगा, ये -1 स्टेट में। दोनों परऑक्साइड वाले जो ऑक्सीजन है -1 में होंगे, क्योंकि इनका अपना जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। वैसे ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है अगर दोनों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बट ये सिंगल बॉन्ड जो है दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में, तो ये जो सिंगल बॉन्ड होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिकल रहेगा। तो इस बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आता। ये जो चार्ज है ये इस इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट का है, ये चार्ज इस इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट का, ये यहाँ ये यहाँ, इसका जो है वो पूरा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसलिए इन दोनों ऑक्सीजन पे, इसीलिए परऑक्साइड आयन का जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है परऑक्साइड आयन में वो -1 होता है, ऑक्साइड में -2 रहता है। तो यहाँ पर आप इस ऑक्सीजन को देखो तो ये -2 में है, क्योंकि इधर से भी एक बॉन्ड है इधर से भी, यहाँ ये हाइड्रोजन +1 स्टेट। तो आप ये पूरा अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम का देखना है तो इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद जब आप सल्फर का कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी +6, 2 4 5 और 6, क्योंकि इस सल्फर के लिए इसको आपने 1 ही कंसीडर करना है, दूसरा जो है वो इस बॉन्ड का है। क्लियर? तो जितने बॉन्ड सल्फर यहाँ पर बना रहा है और कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम्स की, सारे ऑक्सीजन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम सल्फर, तो सबके ऊपर आपने उतने ही बॉन्ड्स के इक्वल नेगेटिव चार्ज और उतना ही पॉजिटिव सल्फर। तो ये इतने एग्जांपल्स एक और कर देते हैं। बट अभी ये चीज क्लियर होगी आपको, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपको नेम लिखना है एसिड का लिख सकते हो। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है ये। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, पर वो 12th में आपको स्ट्रक्चर है सिलेबस में, अभी इतनी करने की जरूरत नहीं है। जितने बुक में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं, चाहे वो एग्जांपल्स की फॉर्म में या एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, वही सारे मैं आपको डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट वन फोर CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल मॉलिक्यूल। इथेनॉल मॉलिक्यूल में आपको अगर कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, पहले हम कन्वेंशनल मेथड से कर लेते हैं। कन्वेंशनली इसको इस तरह से लिख लो C2H6O। सारे एटम्स हमने कंबाइन कर ली, क्योंकि कन्वेंशनल हमारा क्या है कि हमने सिर्फ एटम्स का नंबर देखना है और x वैल्यू पुट करके फाइंड करना है। तो 2x प्लस हाइड्रोजन के लिए 6 + 1, ऑक्सीजन यहाँ पे एक ही है, -2 = 0। Until and unless it is not mentioned about peroxo, हम लिख के ही देते हैं जनरली, या फिर पेरोक्साइड्स के फॉर्मूले से आपको पता लग जाता है। उसके अलावा ऑक्सीजन की आपने इस तरह के किसी भी कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है। तो 2x will be equal to -6 + 2, that is -2। तो यहाँ पर कार्बन x will be equal to -4/2 -2। तो यहाँ पर जो x की
मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो -2 आ रही है, तो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय स्ट्रक्चरली वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ CH इसके स्ट्रक्चर बनाओगे आप, okay. Now carbon is more electronegative as compared to hydrogen. तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, जितने हाइड्रोजन है सब पे +1 कर लो। ऑक्सीजन -2 में आ गया, एक इस बॉन्ड की वजह से, एक इस बॉन्ड की, टोटल ऑक्सीजन का -2 है। अब आप कार्बन की निकालोगे, देखो ये कार्बन +1 +1 +1, इधर से तो दोनों कार्बन ही है, तो इस बॉन्ड का कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर नहीं करना। तो इन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट कार्बन की तरफ आ रही है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, दिस कार्बन विल एक्वायर अ चार्ज ऑफ -3। इस कार्बन पे जो चार्ज आया -3 आ गया, ठीक है। ये -3 कैसे है, क्योंकि 3 जो बॉन्ड्स हैं CH हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग स्लाइटली कार्बन की तरफ रहेगी। और हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए यही एज्यूम करते हैं कि ये कंप्लीट ट्रांसफर है। अब ये कार्बन यहाँ से तो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इस बॉन्ड की वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बट ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की इधर शिफ्टिंग है और इन 2 बॉन्ड्स की इधर शिफ्टिंग है, तो इन 2 की वजह से तो इस पे आया -2 चार्ज, और इस एक बॉन्ड की वजह से इस पे +1 आएगा, तो -2 और +1 टोटल हो गया -1। तो दिस कार्बन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, इस कार्बन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई डाउट है? ये कैसे आया बेटा -1? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रिपीट कर दूं? हाँ ये वही रिपीट कर रही हूँ। इस कार्बन पे देखो अलग से समझा देती हूँ आपको, ये जो कार्बन था इस तरह, सिर्फ मैं इतना ही ड्रॉ कर रही होगी, बाकी के बॉन्ड्स नहीं बनाए, उनकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जस्ट जो सराउंडिंग बॉन्ड्स है उन्हीं की रिक्वायरमेंट है। इस कार्बन पे 2 ये हाइड्रोजन, एक कार्बन, कार्बन कार्बन के बॉन्ड का कोई इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट नहीं है, इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं है। ये कार्बन इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिफ्टिंग की वजह से इसको +1 दे दो, इसको +1, तो यहाँ -1 आ गया कार्बन पे, यहाँ पे भी -1 आ गया। ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट जारी है, तो ऑक्सीजन पे -1, और इसकी वजह से कार्बन पे कितना होगा +1। तो अब कार्बन पे ये ऐड कर लो, -1 +1 एक कैंसिल हो गया, बचा कितना आपके पास -1। तो दिस कार्बन इज इन -1 स्टेट, दिस कार्बन इज इन -3 स्टेट। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन is equal to -3 plus -1 divided by 2, ये आपका आता है -2। जो आपका स्ट्रक्चरली मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से -2 आया था, वो स्ट्रक्चर से भी -2 प्रूव हो गया कि दोनों कार्बन एटम वहां -2 स्टेट में नहीं थे, बट एक -3 में था और एक -1 में था। और ये याद रखो बेटा, कार्बन -3 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन, -4 से लेके +4 तक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। मीथेन जो कंपाउंड है CH4, इसमें कार्बन पे -4 चार्ज है और हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन +1 है, टोटल 4 है, तो 4+ हो गई, ये -4। तो कार्बन कैन शो -4 टू +4, हाईएस्ट +4 ही शो करेगा, क्योंकि उसके पास 14th ग्रुप का मेंबर तो है, बट 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं शो कर सकता, जो सॉरी 2 वाली 4 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो -4 टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन बी शोन बाय कार्बन। एक और एग्जांपल है लास्ट, ये आप लोग बताओगे मुझे इसमें क्या होगा। एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड में अगर हमें पर कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो दोनों मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं। कन्वेंशनली C2H4O2, और यहाँ स्ट्रक्चर, ठीक है। कन्वेंशनली कितना आएगा, 2x + 4 + 1 + 2 -2 = 0। This is 2x + 4 - 4 = 0. So 2x is equal to 0,
तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। तो इस कन्वेंशनल मेथड के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आया वो 0 आया। अब हम ये शो करेंगे कि ये 0 कैसे आया। तो स्ट्रक्चर बनाई हमने CH3COOH, ठीक है। अब क्या करना है, अपने दोनों कार्बन की अलग अलग फाइंड करनी है। ये कार्बन अगेन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है इधर, ठीक है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो इसको मत कुछ करना, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट नहीं शो करना। ये +1, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उसको माइनस चार्ज करिए, कार्बन आ गया -3 चार्ज, ठीक है। अब ये जो कार्बन है इस पे -2, यहाँ -1 और इसकी वजह से कोई नहीं है, तो ये कार्बन आ गया आपका +3 स्टेट। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर is -3 +3 0 0 नहीं सॉरी 2, ठीक है। एनी डाउट? ये हमने प्रूव कर दिया। इस पे देखो 3 हाइड्रोजन एटम है, इस बॉन्ड की वजह से कोई कंफ्यूजन मत रखो आप। तो यहाँ पर ये आपको -3 हो गया। ये C, ये दोनों तरफ ऑक्सीजन से बॉन्डेड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहाँ ये ऑक्सीजन -2 क्योंकि 2 बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट विल बी देयर। यहाँ एक ही बॉन्ड बन रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट। अगर आप इसको भी कंसीडर करते हो तो फिर इसको -2 इसको +1 कर लेना, तो फिर ओवरऑल जब निकालोगे तो ये +3 आए, ठीक है। एनी डाउट बेटा?